Welcome everybody to this new session of electronic communication system. Today we will continue our discussion over envelope diode detector or working mechanism of envelope diode detector. We were discussing in our previous lecture that the output waveform of as we get from diode detector or envelope diode detector is of this form, this form. When we employed a sine wave as input of a diode detector, this type of waveform, when we employed this type of waveform to a envelope diode detector, then the output waveform of the diode detector is of this type. And when this type of output is employed on the smoothing filters, we can get an stable DC supply, and which is very much resemble with the peak amplitude voltage of AC input signal, or you can say it sine wave signal. Okay, so in today's lecture our task is to find the output waveform of a diode detector when we employed a modulated wave as the input of a diode detector. And our motive is, as we discussed earlier, that the motive is same, that we want to find the original modulating signal voltage or original voice message or original information, original signal from the modulated waveform. Okay, so let's see it. This is a modulated wave which is used as the input of this diode detector, a diode, a capacitor and a resistor, the combination of three components which gives rise to the idea of envelope diode detector or manufacturation of envelope diode detector. Then the output waveform, when we employed the modulated wave to this envelope detector as the input of this detector, so the output waveform is of this type. You can see it. This is the form of output waveform, this type. Okay, because we use the rectification property of this diode, the negative half cycle is totally rectified and we are left with the modulating signal, the original modulating signal. Okay, let's see here once again the information contained in the modulated output is in this dotted part, that is the modulating signal is in this dotted part, and this is the carrier wave, amplitude modulated carrier wave on which modulating signal is superimposed. And when we use this type of modulated waveform as the input of the envelope diode detector, then the output waveform is of this type of waveform. If we by zooming means that अगर हम इस फिगर को जूम करके देखें, तो यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या चीजें हो रही हैं यहाँ. एक्चुअली जो प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन के लिए हमें क्या करना है, इस लिफाफे से, चूंकि हम चिट्ठी और लिफाफे का जो जिक्र है वो पहले अपने लेक्चर से करते आ रहे हैं जब से हमने एनवलप डायोड डिटेक्शन का ये शुरू किया है टॉपिक. तो ये जो लिफाफा है, ये जो पूरी चिट्ठी है, इससे हमें इस लिफाफे को अलग करना है, इस इंफॉर्मेशन को अलग करना है. इस इंफॉर्मेशन में ही
सारी जानकारी छिपी है। हमें इससे कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से, कैरियर वेव से कोई ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। हम केवल एक कैरियर वेव से ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसको चाहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, यही हमारा इनपुट सिग्नल है या वॉइस सिग्नल है जिसको हम इनिशियली कन्वे करना चाह रहे थे। तो अगर इसको हम जूम करके देखें तो जूम करके देखने से कुछ इस तरह के फिनोमेना आपको समझ में आएगी। देखिए, जब जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट है उसका इनपुट है वो उसका एम्पलीट्यूड हाई है, तब तक जब मॉड्यूलेटेड इनपुट का, ये मॉड्यूलेटेड इनपुट है, इसका एम्पलीट्यूड हाई है यहाँ से यहाँ तक के रीजन में। चूंकि हमने वो वेव फॉर्म जूम करके हम देख रहे हैं, तो इनपुट जाती है इस डायोड को, और डायोड के जो पी टाइप रीजन का वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है एन टाइप रीजन के वोल्टेज से, और डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, यानी डायोड सैचुरेशन की, डायोड जो है कंडक्शन की स्टेज में आ जाता है। और कंडक्शन की स्टेज में आने का मतलब ये है कि डायोड में से होकर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है, और जब डायोड की करंट कैपेसिटर सी तक पहुंचती है तो कैपेसिटर सी चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू होता है तो एक समय ऐसा आता है जब पी जंक्शन का वोल्टेज एन जंक्शन के वोल्टेज से कम हो जाता है और डायोड कट ऑफ कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम ओपन सर्किटेड भी कह सकते हैं। तो ओपन सर्किटेड कंडीशन में डायोड क्या करता है, ये कट ऑफ हो जाता है, यानी यहाँ से होकर, डायोड में से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करती। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर सी है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है थ्रू दिस रेजिस्टर आर। ये हम अपने पहले लेक्चर में सारी जो फिनोमिना है, सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है। डिस्चार्ज होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब इस कैपेसिटर का वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाता है। इस कैपेसिटर का वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाता है, और फिर से ये डायोड क्या करना शुरू कर देता है, कंडक्ट करना शुरू कर देता है। यानी डायोड के पी रीजन का वोल्टेज फिर से एन रीजन के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, डायोड कंडक्शन स्टेज में आ जाता है, यानी डायोड में से होकर फिर से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है, और ये करंट पहुँचती है कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर यहाँ से फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है। ओके, और ये जो साइकिल है रिपीट 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 एंड रिपीट होती रहती है। ओके, तो जूम करने से क्या है, पहले जूम करने से पहले वो जो जूमिंग वाली फिगर उसको दिखाने से पहले मैं ये आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता कि फॉर द प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन, अगर आपने एनवलप का डिटेक्शन प्रॉपरली करना है, एनवलप का डिटेक्शन प्रॉपरली करना है, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस लिफाफे में से पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इस कंडीशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस कंडीशन को आपको फॉलो करने पड़ेगा। यानी 1/fc, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, शुड बी वेरी वेरी लेस देन टू RC. What is RC? RC is the time constant of a capacitor, that is time it takes to complete discharge. ये टाइम कांस्टेंट है R into C. R is the value of this capacitor, C is the capacitance of this capacitor. So when the product of these two quantity RC is known as the time constant of capacitor. And what is the definition of time constant of capacitor? इस कैपेसिटर को completely discharge होने में जितना समय लगे वो कहलाता है the time constant of कैपेसिटर। और कंडीशन ये है अगर आपको प्रॉपरली इस पूरी मॉड्यूलेटेड वेव से उस सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को अलग करना है, डिटेक्ट करना है, रिकवर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इन्वर्सल है, यानी कि इन्वर्स है कैरियर फ्रीक्वेंसी का, शुड बी the inverse of the carrier frequency should be very very less than to RC, which is the time constant of capacitor, and should be, this RC should be very very less than to 1/FM, that is the inverse of modulated frequency or modulating
frequency, modulating frequency actually. This is the carrier frequency, this is the modulating frequency. Okay, so 1 over fc should be very very less than rc, and rc should be very very less than 1 over fm for the proper envelope detection. अब ये कैसे होगा देखिए, इस तरह का जो वेवफॉर्म है हमें आउटपुट में प्राप्त होता है, इस तरह का वेवफॉर्म हमें आउटपुट में मिलता है। अगर इस वेवफॉर्म को मैं एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे जो रिपल्स की तरह जो यहाँ आपको आउटपुट वेवफॉर्म में ये रिपल्स आपको दिख रहे होंगे। इसको इसी फिगर को जब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो वहाँ कुछ इस तरह की फिनोमिना हो रही है। फिनोमिना ये है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी जब मॉड्यूलेटेड आउटपुट का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है तो डायोड कंडक्शन स्टेज में रहता है, यानी डायोड में से करंट फ्लो होती है इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए। आई लेट इट जूम इट, ओके दिस। सो जब मॉड्यूलेटेड आउटपुट इनपुट रहती है तो मॉड्यूलेटेड इनपुट के इस पोर्शन के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए डायोड कंडक्शन स्टेज में रहते हैं। आपने यहाँ दिख भी रहा होगा डायोड ऑन, ओके लेट मेक इट क्लियर, दिस डायोड इज ऑन नाउ। और जैसे ही पी जंक्शन का वोल्टेज एन जंक्शन के वोल्टेज से कम होने लगता है तो ये जो डायोड है ये कट ऑफ कंडीशन में आता है। यहाँ देखिए इस पोर्शन के लिए डायोड क्या है, ऑफ है, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए। ओके, अब मैं इस फिगर को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि ये वो सिग्नल है, ये वो एनवलप है जिसको हमें इस वेवफॉर्म से अलग करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस एनवलप में इंफॉर्मेशन है, यहाँ इसमें वो सिग्नल है, इसको मेरे को अलग चाहिए। अब होता क्या है, जनरली जब आप मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को एज अ इनपुट ऑफ डायोड डिटेक्टर को यूज करते हैं तो होता क्या है कि डायोड यहाँ से यहाँ तक ऑन रहता है। डायोड के ऑन रहने का अर्थ ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन के लिए डायोड में से होकर करंट फ्लो होती है, और जब डायोड में से होकर करंट फ्लो होगी तो डायोड वो करंट पहुंचेगी कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर इस पोर्शन के लिए चार्ज होता है। फिर क्या होता है, कैरियर वेव का ये सिग्नल जैसे ही डाउन की तरफ यानी निगेटिव पोर्शन की तरफ आता है तो डायोड ऑफ हो जाता है, यानी कैपेसिटर रेजिस्टर आर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है इस पोर्शन के लिए, यहां से इस पोर्शन के लिए। इस हिस्से के लिए डायोड ऑफ रहता है। डायोड के ऑफ रहने की वजह से कैपेसिटर सी रेजिस्टर आर के थ्रू डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो जाता है। इस पॉइंट पर आने के बाद, चूंकि ये जो देखिए कैरियर वेव का जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह का है, ये देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ा 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 फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक डायोड ऑन है। जैसे ही कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड नीचे जाने लगा डायोड ऑफ हो गया। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ से मैक्सिमम निगेटिव से फिर से ऊपर की तरफ गया, जीरो हुआ, और जीरो से फिर से पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। तो जैसे ही इस वोल्टेज तक आता है डायोड इनपुट वोल्टेज, वैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज इस पॉइंट पे इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाता है। इसका अर्थ ये है जो पी रीजन का वोल्टेज है डायोड के, वो एन रीजन के वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है और डायोड फिर से ऑन कंडीशन में आ जाता है। तो इस पोर्शन के लिए डायोड फिर से ऑन हो जाता है, इस पोर्शन के लिए डायोड फिर से ऑन हो जाता है, और ऑन होने की वजह से डायोड में से होकर करंट फ्लो होती है। वो करंट कैपेसिटर तक पहुंचती है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है और इस पीक एम्पलीट्यूड तक वो चार्ज होता रहता है। जैसे ही ये कैरियर वेव नीचे की तरफ आती है, यानी इसका वो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू होता है, तो फिर से ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और एक मिनिमम वोल्टेज पर जाकर जब इनपुट वोल्टेज के बराबर कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाता है तो उसके बाद फिर से डायोड में कंडक्शन शुरू हो जाता है, और ये फिर से इस पोर्शन के लिए फिर से ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। और ये जो साइकिल है ये रिपीट एंड रिपीट होनी
शुरू हो जाती है। तो आप ये देखिएगा कि जो एनवलप हमें प्राप्त होना चाहिए था वो ये है, ये जो डॉटेड वेव फॉर्म बनी है ये, लेकिन अभी जो एनवलप हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह का है। ये इसमें हल्के से फ्लक्चुएशंस या रिपेल्स आप इसे कह सकते हैं, इस तरह के फ्लक्चुएशंस हैं, यानी एग्जैक्ट वेव फॉर्म अभी हमें नहीं मिली है। तो एग्जैक्ट वेव फॉर्म को प्राप्त करने के लिए अभी जो हम ये शर्त डिस्कस कर रहे थे कि ये फॉर द प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन, for the proper envelope detection, the carrier frequency, inverse of carrier frequency should be very, very less than 2 RC, and RC, the time constant of capacitor, that is time it takes to time, the time it take to completely discharge should be equals to inverse of modulating frequency. ये शर्त अगर आप लागू रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो वेव फॉर्म है जिसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन यहाँ है, ये इसको फॉलो करना चाहिए था, इस डॉटेड वेव फॉर्म को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इस डॉटेड वेव फॉर्म से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेविएशन यहाँ हमें देखने को मिलता है। एग्जैक्ट इस एनवलप को वो फॉलो नहीं कर पाता। तो एग्जैक्ट अगर एनवलप को फॉलो कराने तो वो कंडीशन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस लुक हियर सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस इन्हीं 3 कंडीशंस पे होंगे। किन 3 कंडीशंस पे? इन्हीं 3 कंडीशंस पे। ये यानी FC, RC और FM के बीच में जो कंडीशंस हैं वो अगर प्रॉपरली फॉलो होंगी तो निश्चित रूप से हमें एक एग्जैक्ट एनवलप मिलेगा जिसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होंगी। ओके, सो लेट्स सी इट सम स्पेशल केसेस। ओके, लेट्स सी इट this is so special cases, and the first special case is case first when RC is less than FC. RC is less than FC, यानी होना क्या चाहिए था, 1/FC लेस देन होनी चाहिए RC के फॉर द प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन। प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन के लिए ये शर्त फॉलो होनी चाहिए दैट 1/FC is less than, should be less than RC, the time constant of capacitor. But when RC is less than 1/FC, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो ये आउटपुट वेवफॉर्म होगी। आउटपुट वेवफॉर्म आपको पता है क्योंकि रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी को हम यहाँ डायोड की यूज करते हैं, और डायोड जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव जो साइकिल्स हैं उनको यहाँ से रेक्टिफाइड कर देता है, और केवल हमारे पास पॉजिटिव जो हिस्सा है वेवफॉर्म्स का वो हमें मिलता है। ये देखिए, ये पहला पॉजिटिव हिस्सा है, ये दूसरा है, यहाँ से नेगेटिव जो साइकिल्स हैं वो गायब हैं, पूरी की पूरी गायब हैं। और जो हमारा टास्क है, हमारा टारगेट है, हमारा जो इरादा है वो ये है कि ये जो डॉटेड वेव फॉर्म है, ये जो डॉटेड वेव फॉर्म है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इसको हमें प्राप्त करना है। वो प्राप्त हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि RC जो टाइम कांस्टेंट है किसका, कैपेसिटर का, वो बहुत छोटा हो 1/FC के कंपेयर में, यानी टाइम कांस्टेंट छोटा हो। कुल मिला के आप इस शर्त को ऐसा कह सकते हो कि टाइम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल और टू स्मॉल। तो टाइम कांस्टेंट अगर कैपेसिटर का छोटा है, टाइम कांस्टेंट छोटा होने से मतलब है कि जो कैपेसिटर है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये इनपुट मिलती है, कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जैसे ही डायोड कट ऑफ की कंडीशन में आता है, तो टाइम कांस्टेंट छोटा होने की वजह से वो जो कैपेसिटर है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और वो एग्जैक्ट इसी वेव फॉर्म जो कैरियर वेव की वेव फॉर्म है
उसी को फॉलो करता हुआ चला जाता है, यानी जाना उसे यहाँ से चाहिए था, एनवलप हमें ये चाहिए, एनवलप हमें ये चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है इसमें, क्योंकि कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो इतना छोटा है कि वो बजाय इस एनवलप को फॉलो करने के, वो सीधे किसको फॉलो करने शुरू कर देता है, कैरियर वेव को फॉलो कर रहा है। होता क्या होगा कि जैसे ही इनपुट मिली डायोड को, जैसे ही इस डायोड को इनपुट मिलती है, यहाँ देखिए, जैसे ही इस डायोड को इनपुट मिलती है ये कंडक्शन की स्टेट में आ जाता है और यहाँ से जो करंट है वो फ्लो होनी शुरू हो जाती है, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जब जैसे ही डायोड कट ऑफ की कंडीशन में आता है, यानी इसके जो पी रीजन का वोल्टेज है वो एन रीजन के वोल्टेज से कम हो जाता है, डायोड कट ऑफ चला जाता है, तो आरसी धीरे धीरे इस रजिस्टर के थ्रू धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर एकदम से तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। तो तुरंत डिस्चार्ज होने की वजह से जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली जो कैरियर वेव की वेवफॉर्म है उसको फॉलो करती है। तो हमें चाहिए चलना, हमें यहाँ चाहिए था, लेकिन हम चल कहाँ रहे हैं, यहाँ चल रहे। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है टाइम कांस्टेंट छोटा होने की वजह से। इसलिए फॉर द प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ द एनवलप द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर शुड बी लार्ज। Okay, so capacitor discharge very fastly and capacitor voltage does not follow the envelope। तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है बजाय इस एनवलप के, जो डॉटेड एनवलप है इसके फॉलो करने की बजाय वो कैरियर वेव की वेवफॉर्म को फॉलो करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरसी शुड बी लार्ज फॉर द प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ एनवलप। सेकंड केस के तरफ डिस्कस करते हैं। सेकंड केस हमें क्या बताता है। ओके, सो सेकंड केस में यहाँ देखिए, सेकंड केस क्या है हमारे पास, व्हेन आरसी इज ग्रेटर देन 1/fm। आइडियली होना क्या चाहिए, आरसी शुड बी, आरसी की जो वैल्यू है वो 1/fm से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने क्या केस लिया है, व्हेन आरसी इज ग्रेटर देन 1/fm। ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखिए अब आरसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमने ले लिया। हमने कहा कि भाई ऐसी वेवफॉर्म इस एनवलप को अगर फॉलो करना है, इस एनवलप को अगर फॉलो करना है तो आरसी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होगा तो देखिए क्या होगा। अगर आरसी बहुत बड़ा है, फिर से मैं आपको उसी डायोड की तरफ लेके चलता हूं यहाँ। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसको इनपुट मिला, डायोड कंडक्शन की स्टेज में आया, डायोड से करंट फ्लो हुई, करंट कैपेसिटर सी तक पहुंची, कैपेसिटर सी चार्ज होना शुरू हुआ और एक समय पर आकर डायोड कट ऑफ की कंडीशन में चला गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हुई और जो कैपेसिटर सी है स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस रजिस्टर आर। अब इसका डिस्चार्जिंग पीरियड इतना लंबा है कि वो दोबारा से कट ऑफ करके कट ऑन ऑफ की कंडीशन को गुजरते हैं, लेकिन इसका टाइम कांस्टेंट इतना बड़ा है कि ये डिस्चार्ज पूरी तरह से नहीं हो पाता। तब क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि जब ये ऑन कंडीशन में है, ये जब शॉर्ट सर्किटेड है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये कंप्लीटली चार्ज हो गया। इसके बाद जो डायोड है वो पी रीजन का जो वोल्टेज है वो एन रीजन के कंपेयर में कम हो गया, डायोड कट ऑफ कंडीशन में चला गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हुई। अब ये कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू करता है, लेकिन डिस्चार्ज होने में इतना समय लेता है कि वो एनवलप को फॉलो नहीं कर पाता है। यानी कुछ इस तरह का केस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्या केस देखने को मिलेगा, देखिए ये मेरा एनवलप है। आपको पता है कि डायोड ने यहाँ अपनी रेक्टिफिकेशन की प्रॉपर्टी को यूज किया है। रेक्टिफिकेशन के बाद जो आउटपुट हमें मिली है वो कुछ इस तरह की है।
होगा क्या कि डायोड ऑन हुआ, रेजिस्टर कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर ने अपना चार्ज पूरा किया, डायोड ऑफ हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ इस पॉइंट तक, फिर डायोड ऑन हुआ, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, फिर इस पॉइंट तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, फिर देखिए यहाँ देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखिए। अंत में क्या होगा, ये जो डिस्चार्जिंग का टाइम इतना ज़्यादा है, ये जो डिस्चार्जिंग का टाइम इतना ज़्यादा है कि कैपेसिटर को चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में इतना समय लग रहा है कि बजाय इस डॉटेड एनवलप के फॉलो करने के बजाय पहले ये हिस्सा कम हुआ, फिर ये इससे हुआ और अगली बार इस एनवलप को ये छोड़ जाता है, इस एनवलप को ये फॉलो नहीं करता। जबकि इंफॉर्मेशन कहाँ छिपी हुई है, इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ है, इस एनवलप में मेरी इंफॉर्मेशन है। तो इस एनवलप को फॉलो करने की बजाय ये जो आरसी बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये इस एनवलप को फॉलो नहीं करता है, बजाय इस एनवलप के फॉलो करने की से ये इस एनवलप से दूर हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ये सेकंड केस है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज वेरी स्लोली एंड कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट फॉलो द एनवलप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डायगोनल क्लिपिंग। दिस इफेक्ट इज नोन एज diagonal clipping. To avoid diagonal clipping, RC should be less than 1/FM. 1/FM से RC जो टाइम कांस्टेंट है, जो डिस्चार्ज टाइम है कैपेसिटर का, वो हमेशा कम होना चाहिए। कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम हमेशा कम होना चाहिए। तो ये दोनों केस नहीं होने चाहिए, ये दोनों केस नहीं होने चाहिए। ना ही आरसी की वैल्यू 1/FC से कम होनी चाहिए और ना ही आरसी की वैल्यू 1/FM से ज्यादा होनी चाहिए। आरसी की वैल्यू कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो 1/FC और 1/FM के बीच में रहे। तो लेट अस डिस्कस द केस नंबर 3rd। दिस इज द केस नंबर 3rd when MA is greater than 1. This is the 3rd exceptional case. Okay, जब modulating index की वैल्यू, ये this is the amplitude modulation index MA is greater than 1, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने स्टडी किया था तो हमने ये जिक्र वहां किया था कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है MA, इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम 0 और 1 के बीच में वेरी करना चाहिए। दिस MA शुड बी वेरी बिटवीन 0 and 1। अगर ये इसकी वैल्यू 0.5 होगी, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 50% मॉड्यूलेशन हुआ। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 100 आंसर आया, दैट इज मॉड्यूलेशन जो है वो आपका 100% हुआ है। अगर इसकी वैल्यू 0.2 है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर 20 आया, इसका मतलब मॉड्यूलेशन 20% हुआ है। यानी आइडियली मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या इफेक्ट आएगा टू द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। ओके, इस तरह का एक फिगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हुआ क्या, प्रोसीजर वही रहेगा। यहां से यहां के बाद, यहां से यहां के समय में, यहां से यहां तक, ये आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहां से यहां के लिए लेट अस जूम इट, सो मेक इट यू क्लियर दिस। ओके, तो इस समय के लिए यहां से यहां के लिए, इस पोर्शन के लिए डायोड कंडक्शन स्टेज में रहता है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता रहता है, और कैपेसिटर को चार्ज होने के बाद, इस पॉइंट के बाद जो डायोड है वो कट ऑफ की कंडीशन में चला जाता है, डायोड ऑफ हो जाता है। डायोड ऑफ होने की वजह से कैपेसिटर यहाँ से इस पोर्शन के लिए डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर से कैपेसिटर चार्ज होता है इस पोर्शन के लिए,
इस पोर्शन के लिए, इस हिस्से के लिए वो चार्ज होता है फिर से, और चार्ज के बाद वो फिर से डिस्चार्ज करता है, ओके, थ्रू रेजिस्टर आर, और ये साइकिल रिपीट एंड रिपीट चलती रहती है। लेकिन इसमें जो ये एनवलप है ये निगेटिव साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस प्रोसीजर में। कब, किस प्रोसीजर में? जब मॉड्यूलेशन का जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। क्यों होता है ऐसे? तो आप इन जरा जो एम्पलीट्यूड्स हैं इन पे ध्यान दीजिए। ये जो मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड है यहाँ से, ये है EC प्लस EM, और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ कहीं होना चाहिए था, जैसे ये आइडियली इन वेव फॉर्म्स में आपको दिख रहा होगा। इन वेव फॉर्म्स को देखिए, ये मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड है EC प्लस EM, और यहाँ मिनिमम वोल्टेज है EC माइनस EM। इस वेव फॉर्म से मैं और अधिक आपको क्लियर हो जाएगा। इस वेव फॉर्म से देखिए, ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज है EC प्लस EM, ये मिनिमम वोल्टेज है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का EC माइनस EM। EC जो पीक वोल्टेज है वो कैरियर वेव का पीक वोल्टेज है, और EM जो पीक वोल्टेज है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक वोल्टेज है। तो यहाँ से जो पीक आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलती है वो होती है EC प्लस EM, और नेगेटिव की तरफ जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उस तरफ जो मिनिमम वोल्टेज मुझे मिलती है वो होती है EC माइनस EM। इस तरफ चूंकि EC अपने नेगेटिव की तरफ आती है, EM भी अपने नेगेटिव की तरफ आती है, जो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी वोल्टेज की वो मिलेगी माइनस EC माइनस EM, और यहाँ इस पोर्शन पे मुझे मिलेगी माइनस EC प्लस EM। लेकिन इन वोल्टेज, इनको आप ध्यान रखें किस तरह से हमें वोल्टेज मिली है। सबसे ऊपर जो पीक वोल्टेज मुझे मिली है EC प्लस EM, और जो मिनिमम वोल्टेज मिली है अपोजिट टू दिस माइनस EC माइनस EM। ऊपर की तरफ जो वोल्टेज मुझे मिली है EC माइनस EM, और नीचे की तरफ जो वोल्टेज मिली है मुझे EC माइनस EC प्लस EM। क्योंकि माइनस EC तो माइनस ही रहेगी इस हिस्से के लिए। अब देखिए यहाँ जरा इन वोल्टेज को ध्यान से देखिए, EC प्लस EM कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसी ही है। माइनस EC माइनस EM कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लुक एट दीज वोल्टेजेस, माइनस EC प्लस EM एंड EC माइनस EM, यानी ओवरलैपिंग हो गई है, वोल्टेज की ओवरलैपिंग हो गई है। यानी जो केस अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो केस कुछ इस तरह का है कि EC जो कैरियर वोल्टेज है, पीक कैरियर वोल्टेज, वो छोटा पड़ जाता है किससे? पीक मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज से। ये होना नहीं चाहिए। होता क्या है कि इस तरह के वेवफॉर्म्स जब हमें मिलती हैं उसे हम किसी स्मूथिंग फिल्टर से पास कराते हैं, तो जो डायोड काम करेगा जिस पोर्शन के लिए वो कुछ इस तरह का मिलता है हमें। दिस चूंकि इस पोर्शन के लिए काम करेगा, इस पोर्शन के लिए, फिर इस पोर्शन के लिए काम करेगा। क्योंकि नेगेटिव की तरफ तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें डायोड की। डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ तो कंडक्शन की स्टेज में आएगा नहीं। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं उनमें डायोड का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का मिलता है। जब हम उसे स्मूथिंग फिल्टर, इस वेव फॉर्म को हम स्मूथिंग फिल्टर से पास कराते हैं तो हमें कुछ इस तरह का वेव फॉर्म वहां मिलता है, ओके, इस तरह का। और ये जो वेव फॉर्म है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली तो हमें इस एनवलप को फॉलो करना चाहिए था, ये एनवलप हमें मिलना चाहिए था, लेकिन ये एनवलप हमें नहीं मिलता है। तो डायोड क्या करता है, केवल इस रीजन के लिए कंडक्ट करता है, इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए कंडक्ट करता है। क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है इनके लिए डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव की साइड है, नेगेटिव हाफ साइकिल की साइड है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ 3 एक्सेप्शनल केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला एक्सेप्शनल केस था जब RC की वैल्यू FC से छोटी हो, 1/FC से छोटी हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, फर्स्ट केस इज व्हेन RC इज लेस देन 1/FC, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड केस व्हेन RC इज ग्रेटर देन 1/FM, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो कैरियर वोल्टेज को फॉलो करती है। अगर ऐसा होगा तो जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो छोड़ जाती है, डेविएट हो जाती है।
एनवलप की जो एनवलप को फॉलो करना चाहिए था कैपेसिटर वोल्टेज को, लेकिन वो डेविएट हो जाती है। और तीसरे केस में जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक से ज़्यादा होगा, ओवर मॉड्यूलेशन का जिसको हम केस कहते हैं, तो उस समय जो वेवफॉर्म होगी, आउटपुट वेवफॉर्म, हमें डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म वहाँ मिलती है। तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर 3 एक्सेप्शनल केसेस विच आर नॉट टू बी हैपन in the case of clear modulating output voltage or clear audio waveform at the output of diode detector. This cannot be or should not be happen. This should not be happen. And the ideal equation, this is the ideal equation, 1 over fc should be less than rc. This is the time constant of capacitor, should be less than 1 over ऐसा। ये कंडीशन अगर आपको प्रॉपर एक्सट्रैक्ट करना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को फ्रॉम द मॉड्यूलेटिंग वेव which is used as the input of diode detector, so this equation should be followed. So that's all for now, and meet you into the next one. Thank you.